Hello everyone and welcome back to my channel Study with Sanab. So today we are going to start with mathematics and the very first chapter of your class 10th maths, that is real numbers, lecture number 1. So in our previous classes we read about all these types of numbers, that what are natural numbers, what are whole numbers, what are integers, rational numbers, irrational numbers. So let us have a quick recapitulation of all these numbers. What are natural numbers? Natural numbers are numbers starting from 1 to infinite. All the numbers starting from 1 are considered as natural numbers. Numbers starting from 1. While on the other hand, whole numbers are the combination of natural numbers including 0. In whole numbers, we have all natural numbers but 0 as well. So the numbers starting from 0 are considered as whole numbers. Integers are a combination of all positive and negative numbers. Alright. And 0 is neither positive nor negative. Okay. Rational numbers are those numbers which are in the form of p by q, where q is not equivalent to 0. Alright. These all numbers are in the form of p by q and q should not be equivalent to 0. So we can say that number is a rational number. Irrational number are those numbers that are non-terminating, that does not terminate. Those numbers are considered as irrational numbers. But in this class, we are going to read about real numbers. What are real numbers? Any number that can be plotted on a number line is known as a real number. So any number that can be plotted on a number line is considered as a real number. So a real number is any number that can be represented on a number line or by an infinite decimal expansion. So the rational numbers and irrational numbers, the combination of rational and irrational numbers form the real numbers. For example, minus 7.5 can be plotted on a number line, minus 5 can be plotted on a number line, minus 7 by 3 can be plotted on a number line, root 2 can also be plotted on a number line, and pi can also be plotted on a number line, 8 can also be plotted on a number line. Pi and root 2 are irrational numbers, right? They also have some value. They are non-terminating, but they also have some value. So we can plot these numbers also on number line. So all the numbers which can be plotted on a number line are considered as real numbers. I hope you got it. Now, what is lemma and what is algorithm? What do we mean by the term lemma and by the term algorithm? So lemma is a proven statement with which we use to prove other statements. Lemma is a proven statement which we used to prove other statements. एक ऐसी statement जिसकी मदद से हम दूसरी statements को prove करते हैं, उस statement को बोलते हैं lemma. उस statement को बोलते हैं lemma. A lemma is a proven statement while used while proving another statement. While algorithm क्या होता है? Algorithm in simple meaning means steps, procedure. जो हम किसी भी आंसर को पाने के लिए जो steps follow करते हैं, उस सब को बोलते हैं algorithm. Algorithm is a series of well-defined steps while gives a procedure for solving a type of a problem. Euclid's division lemma. अब Euclid's division lemma क्या होती है? हम आगे बढ़ते हैं. Euclid's division lemma. Euclid's division lemma होती है let a and b be any two positive integers. अगर दो positive integers है a और b, तो उनके बीच में दो और unique integers exists करते हैं q and r, such that a equals to bq plus r, where r is equal either greater than 0 or equivalent to 0 but less than b. ये statement है आपकी Euclid's division lemma. Let a and b be any two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is either equal to 0 or greater than 0 but less than b. ये क्या है? अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे आपको पता चलेगा that a is dividend, b is divisor,
and Q is quotient plus R is remainder. So this जो हम बचपन से पढ़ते आए, dividend equals to divisor into quotient plus remainder, बस वही है, it's nothing. बस वहां पर dividend divisor को A B नाम रख लिया, that's it. So लेकिन हमेशा बच्चा याद रखना कि जो remainder होता है वो हमेशा divisor से छोटा होता है, no matter what. The remainder is always, always, always smaller than the divisor. B is the divisor, A is the dividend, Q is the quotient, R is the remainder. या तो remainder 0 के बराबर होगा या greater than 0 होगा, लेकिन हमेशा less than B यानी कि divisor होगा. This is known as Euclid's division lemma. So the Euclid's division lemma is a restatement of the long division process. The Euclid's division lemma is a restatement of the long division process. जब वो long division process करते थे, उसका एक जो dividend equals divisor into quotient plus remainder जब वो long division process करते थे, उसी का एक restatement है क्या? ये Euclid's division lemma. And the integers Q and R are called the quotient and the remainder respectively. Q और R क्या है यहाँ पर? Quotient और remainder. A is dividend, B is divisor. That's it. I hope you understood it. Then now what is Euclid's division algorithm? Euclid's division algorithm क्या होता है? Algorithm I told you is means simply steps, procedure that we follow to get the required answer. Algorithm means steps. Algorithm का क्या मतलब होता है? Steps. So to obtain the HCF. Now what is HCF? HCF is highest common factor. So ये हम Euclid's division algorithm क्यों यूज करते हैं? HCF को फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम Euclid's division algorithm इस्तेमाल करते हैं. To obtain the HCF of two positive integers say C and D with C greater than D, follow the steps. अब हम निकालते कैसे HCF? So apply the division lemma to find Q and R. Division lemma जो था A equals to BQ plus R, इस डिविजन लेमा को हम अप्लाई करते हैं Q and R ढूंढने के लिए, जहां पर A equals to BQ plus R, R is greater than 0 but less than B, ये equal to 0 भी हो सकता है. If R equals to 0, अगर आप रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, the HCF is B. जो HCF होगा B होगा. इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ. जब हम ये यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम करते हैं, जो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही उस पूरे क्वेश्चन का HCF होता है. जब हम यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम करते हैं, जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होता है, दैट इज द HCF ऑफ द गिवन क्वेश्चन. So if R equals to 0, the HCF is B. If R is not equal to 0, अगर R 0 के बराबर है तो HCF जो पहले डिवाइजर होगा वही आपका HCF है. लेकिन अगर अब R 0 के बराबर नहीं है, हम क्या अप्लाई करेंगे? यूक्लिड्स डिविजन लेमा. किसको? D को. D पे हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा अप्लाई करेंगे और R पे, D एंड R पे हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा अप्लाई करेंगे. इन शॉर्ट, जो लास्ट स्टेप में यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम में जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होता है वो पूरे क्वेश्चन का HCF होता है. कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इन 0. हम तब कब तक कंटिन्यू करते रहते प्रोसेस? जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, चाहे कितना भी लॉन्ग हो जाए. ऑलराइट, द डिवीजन एट दिस स्टेज, द डिवीजन नहीं है, इट्स डिवाइजर. ऑलराइट, डिवाइजर. The divisor at this stage will be the required HCF. जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होगा वही HCF होगा. अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट हम आगे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे सारे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. So you use Euclid's division algorithm to find the HCF of. सबसे पहले 135 and 225. So let us do this. हमें HCF निकालना है यूज करके Euclid's division algorithm. क्या क्वेश्चन है आपका? 135 and 225, राइट? यस. तो 135 and 225 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है. सो 135 and 225 का HCF निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? As 225 is greater than 135, तो डिविडेंड कौन बनेगा? हमेशा बड़ा वाला 135. सो 225 को हमने अंदर भरा, 135 को बाहर. सो 135
1 से ही होगा इसका 135 का। सिंपल डिवीजन हमने किया, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 90। अब देखो, अब यहां पर रिमाइंडर आया। अब जब रिमाइंडर आया, जो पिछले स्टेप में आपका डिवाइजर था वो आपका अब बन जाएगा डिविडेंड। जो लास्ट स्टेप में आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा अब आपका डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो आपका बन जाएगा डिवाइजर। सिमिलरली इसको भी हम करेंगे, 91 से ही होगा, 1 जा 90, क्या आंसर आएगा 45। यस, सो अब जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, तो 90 अंदर आएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया 45, 2 जा 90। मैंने बोला था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। नाउ द रिमाइंडर हैज फाइनली कम 0, सो आपका HCF क्या हो जाएगा, 45 इज द HCF। जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होगा वही इस पूरे क्वेश्चन का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो एज 22 इज ग्रेटर देन 135, हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम, ऑलराइट। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन होता है ये आपको रफ साइड पे करना होता है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 225 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर 135 इंटू क्वोशंट इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, पहले स्टेप में क्या था 90, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, और जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होगा वही पूरे क्वेश्चन का HCF होगा। सो दिस, नाउ आप लिखेंगे फिर यहाँ पे, नाउ द रिमाइंडर इज नॉट 0, राइट, इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कंटिन्यू द प्रोसेस। जो हम कंटिन्यू करेंगे तो अब क्या आएगा, 135 डिविडेंड बन गया, और आपका डिवाइजर क्या हुआ 90 इंटू क्वोशंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। रिमाइंडर द again the remainder is not 0, remainder is not equivalent to 0, so we continue the above step, okay ना, ये जो इसमें थोड़ी थोड़ी मैं छोटा छोटा दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नहीं पहुंचेगा, आप अच्छी तरीके से इसका स्टेप्स लिखिएगा कि remainder is not 0, so we continue the above step, you have to write the full statement, okay। 90 equals to 45 is the divisor now into quotient plus 0, then अब 0 आ चुका है remainder, so the remainder has come 0, 0 आ चुका है remainder, just a second, the remainder has come 0, so our procedure stops, so our procedure stops, so हम अपना procedure stop करेंगे। Since in the last step the divisor is, last step में divisor क्या है, last step आपका ये था, divisor is 45, the divisor is 45, therefore the HCF of 135 225 is 45, क्योंकि जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होगा वही इस पूरे क्वेश्चन का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इट्स सिंपल, हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा, जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होगा वो आपका ये हो जाएगा HCF। और हमें यहाँ पर ये हमें अब मैंने क्या लिखा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वही वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ऑलराइट। I hope you understood it. Next question करते हैं। Just a second. So ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, राइट, 135 and 225 done. Now we will do 867 and 225. Let us do this one.
867 and 255 and 255. सो सेम प्रोसेस करना है, सेम डिवीजन करना है हमें. हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? सोल्यूशन में हम लिखेंगे as 867 is greater than 255, so using Euclid's division algorithm, मैंने शॉर्ट में लिखा है, फुल लिखेगा, ठीक है. Euclid's division algorithm, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? ब्रैकेट में जाएगा 867 जो बड़ा है और 255. तो अगर आप देखेंगे 255 3s आर क्या होता है? 255 3s आर 765. 765 को हम माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 102. तो अब आप देखो यहाँ पर रिमाइंडर अभी आपको 0 नहीं आया, तो वी हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस. We have to continue the process because the remainder has not come 0 yet. तो अब यहाँ पर ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर बन जाएगा और जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा. So 2s are 204. माइनस करिए 51 अब आपका नया रिमाइंडर है, तो ये अब आपका नया डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड लास्ट स्टेप का डिवाइजर दैट इज 102. 51 2s are 102. Now the remainder has come 0. So अब हम लिखते हैं, ठीक है. मैं अब स्टेटमेंट्स आपको नहीं दिखाऊंगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स लिखी थी एग्जैक्टली आपको वैसे ही लिखनी है. अब मैं शॉर्ट में लिखती हूँ. ऑलराइट. So as this is greater than this, using Euclid's division algorithm, 867 किसके बराबर हो जाएगा? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट लास्ट रिमाइंडर जो पहले स्टेप में था. फिर आप लिखेंगे द रिमाइंडर हैज इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कंटिन्यू द अबव स्टेप. फिर क्या होगा? सेकंड में आपका होगा net dividend is 255, so 255 equals to divisor 102 into quotient that is 2 plus remainder that is 51, right? अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है. सेम आप लिखेंगे the remainder is not equal to 0, so we again continue the process step. All right. So next आपका dividend equals to 102 equals to divisor into quotient plus remainder is equals to 0. फिर आप लिखेंगे लास्ट में the remainder has come 0. So our procedure stops. Since in the last step the divisor is, last step में divisor क्या है? Last step में divisor आप देखिए 51 is the last step में divisor. Since in the last step the divisor is 51, hence HCF of 867, 255 is 51. It is as simple as that. I hope you understood it. यहाँ पर आप full statements लिखेंगे, all right? जैसे मैंने पिछले step में पार्ट में इसकी दिखाई थी. I hope you understood it. So ये दोनों हो गए. आपकी NCERT बुक में इसके और ज्यादा क्वेश्चंस है, आप वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Any positive odd integer यहाँ पर लिखा है is of the form 6q plus 1. यहाँ पर even भी लिखा हो सकता था. चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं. I don't know मुझे यहाँ पर पहुंचेगा कि नहीं, so मैं उस ब्लैक पेज पे करती हूँ. ओके, हमें बोलना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होगा, 6q plus 3 की फॉर्म में होगा या 6q plus 5 की फॉर्म में होगा. सो सोल्यूशन यहाँ पर मैं लिखती हूँ. सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. हम a को मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर. अब मुझे बोलो आपको दिया गया 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में वो होना चाहिए. हमें पता है कि b आपको दिया गया फॉर एग्जाम्पल 6q plus 1. फॉर एग्जाम्पल 6q plus 1 में हम देखेंगे तो ये a हो गया, सॉरी ये b हो गया, b q plus r, r रिमाइंडर है.
तो b आपका 6 है कि नहीं? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि b 6 होगा। क्यों होगा? हमें पता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट? अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर b 6 हो गया, q is q और रिमाइंडर इज 1, so b is equivalent to 6, right? So okay. So b is equivalent to 6, ये क्लियर है? So b किसके बराबर हो जाएगा? b is equivalent to and b is equivalent to 6, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, या तो 6q plus 3 या तो 6q plus 5। तो 6 क्या है? b है ना। So let a be any positive integer and b को मान लेते हैं 6। So अगर अब हम क्या यूज करेंगे? by using Euclid's, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है? by using Euclid's division algorithm, शॉर्ट में a equals to 6q plus r for some integer, right? q क्या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा, राइट? और r क्या होगा? मैंने आपको हमेशा बोला है कि रिमाइंडर हमेशा b यानी कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, नो मैटर व्हाट। द रिमाइंडर इज ऑलवेज 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 स्मॉलर देन द डिवाइजर, स्मॉलर देन b। सो अगर क्वेश्चन ये आपका डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 या तो 5, बस उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा वो डिवाइजर से b से रिमाइंडर छोटा होगा। तो यही केसेस है रिमाइंडर के। क्यों? रीजन आप लिख सकते हैं, या तो रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 होता है या तो इक्वल टू 0 बट लेस देन b यानी कि डिवाइजर। क्लियर? अब हम केसेस लिखते हैं। केस 1, when r equals to 0, जब r 0 के बराबर होगा तब क्या होगा? a equals to 6q plus 0, right? a equals to bq plus r होता है, तो 6 क्वेश्चन हमें पता नहीं है, 6 आपका डिवाइजर है और 0 आपका रिमाइंडर है, तो a तो 6q के बराबर ही होगा, राइट? तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। केस 2, नाउ व्हेन r equals to, जब r 1 के बराबर होगा, a equals to 6q plus 1, तो इसको तो कुछ होगा नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब केस 3 देखो, when r equals to 2, जब r 2 के बराबर होगा तो a equals to 6q plus 2, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ओके हाँ, सो इसको इक्वेशन 3 मान लिया। when r equals to 2, 6q plus 2 के बराबर होगा, तो हमने इसको इक्वेशन 3 मान लिया। केस 4, when r, अब जब r 3 के बराबर होगा, a equals to 6q plus 3, सिंपल, इसको इक्वेशन 4 मान लो। नाउ केस नंबर 5, when r equals to 4, जब r 4 के बराबर होगा, a equals to 6q plus 4, राइट? इक्वेशन नंबर 5। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, सो वेयर शुड आई डू? यहाँ पर करती हूँ मैं, ऑलराइट, मैं यहाँ पर सेक्शन अलग से बनाती हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। नाउ केस नंबर 6, एक ही केस बचा है जब r 5 के बराबर होगा, क्योंकि 6 नहीं हो सकता, क्योंकि r जो है हमेशा स्मॉलर देन डिवाइजर होता है, b होता है। तो केस नंबर 6 आपका आएगा when r equals to 5, जब r 5 के बराबर होगा तो equals to 6q plus 5, नंबर 6 इक्वेशन मान लो। अगर अब आप इन ना 1 2 3 4 5 6 सारी इक्वेशंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होगा, या तो 6q plus 3 या तो 6q plus 5, यानी कि ये और ये। अब आप 6q देखोगे तो 6q तो कोई भी जब इवन होगा तब उसकी फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी नंबर इवन होता है तो वो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होता है, राइट? इफ एनी नंबर इज इवन देन इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2, तो 6q इज डिविजिबल बाय 2, सो ये तो इवन है। यहाँ पे तो 1 है तो ये तो ऑड है, 6q plus 2 है, ये तो डिविजिबल बाय 2 है, तो ये भी इवन है। ये ऑड है तो ये ऑड इंटीजर हो गया। ये भी 4 है, ये डिविजिबल बाय 2 है, तो ये इवन है। और ये 5 है, 5 ऑड है तो ये ऑड है।
तो हमें ऑड पूछा गया, तो इसमें ऑड क्या क्या निकला, does any positive odd integer can either be of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, क्योंकि ये because since आप रीजन भी लिख सकते हो, since they are not divisible by 2, और आप ये भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि any positive even integer can be of the form 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 because they are divisible by 2. जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है वो इवन होता है, जो नहीं होता है वो ऑड होता है. यहाँ पर 6q डिविजिबल बाय 2 है, तो आप लिखोगे लास्ट में therefore any positive odd integer can be of the form, किस फॉर्म में वो हो सकता है, 6q plus 3, सॉरी पहले 1, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. रीजन में आप लिख सकते हो ब्रैकेट में since they are not divisible by 2 and any positive even integer can be of the form 6q plus 2, 6q plus 4 because they are divisible by 2. I hope this question is clear. It was very easy. Clear? I hope it is clear. I will wait for 2 minutes so that if you want to take a screenshot or copy it out, okay? Do it quickly. सिंपल मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ. हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी को 6 के बराबर रखेंगे. हम ईडीए यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे. ए इक्वल्स टू 6q प्लस आर, कोई इंटीजर q और हमें पता है रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 5 होगा. क्यों? क्योंकि हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर. सारे केसेस लिखेंगे जब r 0 के बराबर होगा क्या होगा, जब 1 के बराबर होगा, जब 2 के बराबर होगा, तो 3 के, 4 के, 5 के. तो 6q में वो इवन होगा. क्यों? क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है. 6q प्लस 1 में ऑड, ये ऑड नंबर है, तो जो डिविजिबल बाय 2 होगा वो इवन होगा, जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा वो ऑड होगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ये क्वेश्चन डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, यहां पर आपको पूछा गया कि व्हाट इज क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. क्यूब पूछा गया, राइट? चलो करते हैं. सो अब ध्यान लगाओ, हमें बोला गया सेम वही हमें करना है, हमें सेम वही क्वेश्चन करना है, मगर अब यहाँ पर क्यूब किया है तो हमें इसको क्यूब कर देना है, ब्रैकेट में क्यूब लगा देना है. दैट्स इट. सेम प्रोसीजर करना है. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सेम एज वी डिड, और b इस बार किसके बराबर होगा, 9m plus 1 है, सो b इक्वल्स टू 9. लेकिन आप सोचो अगर हम 9 लेंगे तो हमारे को कितने r लिखने पड़ेंगे, 0b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, इतने सारे केसेस हमें लिखने पड़ेंगे. सो हमारे लिए, सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन फॉर आवरसेल्व्स वी विल टेक द b इक्वल्स टू 3 इंस्टेड ऑफ 9. क्यों? ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो फिर हमें सिर्फ 0 1 2 और 3 2 और 0 1 और 2 लेना पड़ेगा अगर हम 3 लेंगे. अगर हम 9 लेंगे तो हमें 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी. तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, b को 3 बना दे, तो हम इसको 3 लिख लेते हैं, b को हम 3 मान लेते हैं. ठीक है. सो यूजिंग, क्या यूज करेंगे हम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. a अब किसके बराबर हो जाएगा, 3q प्लस r के बराबर हो जाएगा फॉर सम इंटीजर, राइट? और q या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा, और r क्या होगा, 3 है डिवाइजर, तो हमेशा छोटा होगा ना, तो या तो 0 या तो 1 या तो 2. ऑल राइट, क्योंकि r हमेशा या तो 0, एक सेकेंड, हाँ 0 1 या 2 हो सकते हैं. और क्यों? क्योंकि r हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 बट लेस देन b. सब केसेस लिखते हैं. केस नंबर 1, व्हेन r इक्वल्स टू 0. अब जब r 0 के बराबर होगा तो a इक्वल्स टू 3q, राइट?
लेकिन यहाँ पर आपको क्यूब पूछा गया है, राइट? सो आप इसको क्यूब कर दोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो 3 क्यूब का क्यूब किसके बराबर होता है? 27 क्यूब। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे। सो 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा? 9 3 क्यूब। और फिर हम लिखेंगे लेट m इक्वल्स टू, हम m को क्या मान लेंगे? लेट m इक्वल्स टू 3 क्यूब। अगर m ये है तो हम लिख सकते हैं 9, इसको हमने m लेट किया, 9 है, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल। आप सीधे इसको होल स्टेटमेंट को क्यूब कर दिया तो आ गया आपका 27 क्यूब। 9 को कॉमन फैक्टर लिया, अंदर 3 क्यूब बचा, 3 क्यूब को हमने मान लिया कि वो m के बराबर है, सो 9m बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब जब क्यूब, सेकेंड है केस नंबर 2, व्हेन r इक्वल्स टू 1, जब r 1 के बराबर होगा तब क्या होगा? a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1। अब इसको लेकर हमें क्यूब करना है, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्यूब पूछा गया है। 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब होगा, हमें पता है, आपको फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, ये है ना फॉर्मूला a प्लस b की क्यूब की। सो सिमिलरली 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1, पहले हम 1 बाद में लिख लेते हैं, या पहले भी लिख सकते हो, 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1, 3 क्यूब प्लस 1। सिंपल, मैंने क्या लिखा है? मैंने फॉर्मूला लिखी है a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? 3 क्यूब का क्यूब किसके बराबर होगा? 27 क्यूब, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 क्यूब बन गया, और 3 क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट में, 3 क्यूब से 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 कितना होता है? 27 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पर एक क्यूब, यहाँ पर एक क्यूब, क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब इंटू 1 इक्वल्स टू 9 क्यूब। अब ये आपके पास बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? 9 अगेन कॉमन फैक्टर लेंगे, 9 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? 27 क्यूब किसके बराबर होता है? 3 क्यूब। 1 को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, ठीक है, तो फिलहाल 1 को हम ऐसे रखते हैं, 27 क्यूब स्क्वायर, अगेन 3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आएगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1, और 1 को हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं इस वाले। सो अब हम यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लिखेंगे लेट m इक्वल्स टू, इस स्टेटमेंट से दिमाग लगाओ, क्या होगा? m बराबर, इस जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम m लेट कर देते हैं, इन शॉर्ट, इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1, ये m के बराबर हो गया, तो ये पूरी स्टेटमेंट m हो गई। दिस मीन्स a9m, क्योंकि ब्रैकेट वाला m बन गया ना, हमने अभी लेट किया ना इसको, प्लस 1 जो बाहर था, सेकेंड भी हमें मिल गया। अब हमें निकाला 9m प्लस 8, लेकिन जगह नहीं है। ओके, आई होप इतना तो समझ आ गया। मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा दूंगी। आपको क्या करना है, पहले मैं इतना रिवाइज करवा देती हूँ। कुछ नहीं, सेम जैसे हमने सब में किया, बस आपको यहाँ पर क्यूब करना है। हमने क्यूब नहीं, यहाँ पर आपको क्यूब करना है। फिर क्यूब करने के बाद आपको 9 को कॉमन फैक्टर लेना है, जो ब्रैकेट में होगा उसको आपको लिखना है लेट m इक्वल्स टू, जो भी जितना भी बड़ा नंबर आपने ब्रैकेट में रखा है उसको m के बराबर कर दिया, तो ये 9m बन गया। अब जब 1 होगा, सिंपल इसको क्यूब कर देगी। अब आप दिमाग लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगी कि a प्लस b की फॉर्मूला बन गई। सो a प्लस b किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। तो वो फॉर्मूला लगा दी, सॉल्व कर दिया, और 9 को कॉमन फैक्टर ले लिया, जो ब्रैकेट में होगा उसको m के बराबर लिख दिया। सो 9m प्लस 1, ये दो केसेस बन गए। अब हमें तीसरा केस चाहिए, 9m प्लस 8। तो हमने लिख लिया r इक्वल्स टू 0 जब होगा, और r इक्वल्स टू 1 भी लिख लिया। अब बचा है जब r इक्वल्स टू 2 होगा, केस नंबर 3। तो मैं यहां से थोड़ा सा इरेज करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Something happened. Just a second. Yes. So I hope इतना आपको क्लियर है। और आप बोलोगे हमने 3 क्यों लिया b को बराबर, तो सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। नहीं तो हमें 9 में 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, क्योंकि हमारा आंसर 3 लेकर भी आ सकता था, इसलिए हमने खुद को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, खुद के लिए हमने 3 के बराबर लिया b को। ओके, इन ऑर्डर इफ यू आर कंफ्यूज्ड। अब हमारे पास एक बचा है केस 3। यहां से मिट गया,
जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ठीक कर देती हूँ. ओके, पहले मैं केस 3 लिखती हूँ. अगर आई डोंट नो ये चलता क्यों नहीं. ओह माय गॉड, पता नहीं क्या क्या खुल रहा है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, अब हमारे पास बचा है केस नंबर 3. केस नंबर 3 है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो मैं लाइन बना देती हूँ. केस नंबर 3 है व्हेन r इक्वल्स टू 2. 0 भी हमने ले लिया, 1 भी हमने ले लिया. जब r 2 के बराबर होगा, जब r 2 के बराबर होगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, राइट. a इक्वल्स टू 6q प्लस 2 के बराबर होगा. सो a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, 6q लिख लिया, आई एम सो सॉरी, 3q प्लस 2. अब हम इसको फिर से क्यूब करेंगे क्योंकि क्यूब पूछा गया क्वेश्चन में. तो सिंपल पे फिर से वही फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी. हम सेम वही लिखेंगे, इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 है, प्लस 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2. सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है. 3q का क्यूब कितना होता है 27q क्यूब, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3q इंटू 2 कितना होता है 3 2 सा 3q इंटू 2. Just a second. Just a second. हाँ, so 3 2 6q और ब्रैकेट में क्या है 3q प्लस 2 है ना. सेम करते हैं. तो 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 6q, नहीं 6q को 3 के साथ इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 18q स्क्वायर. q यहाँ पर एक q, यहाँ पर एक q. 6q को 2 के साथ इंटू किया, प्लस 6q इंटू 2 इक्वल्स टू 12q, राइट. अब हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन फैक्टर लेंगे. पता नहीं ये चल नहीं रहा, एक सेकेंड. हाँ, ओके, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड. हैंग हो रहा है.